Good morning, students. Let's start our study with grammar composition, class 5th. In our previous videos, we already covered a chapter noun with exercise, and I hope that you already understand the chapter very clearly and learn all the definitions of that chapter. Yesterday, we start a new topic, that is pronoun, and I think we already studied the definitions and some kind of review we already did about the chapter pronoun. First, let's see that how many chapters and how many topics we cover in grammar. Chapter number 1, noun. We already do noun review, noun gender, noun number, noun more about possessive. With definitions, with explanation and exercise, we complete that chapter. Yesterday we start new chapter, that is your pronouns, and we already did a pronouns review. Today's topic that we are going to do is indefinite pronoun. First, we did we did revision of pronouns again and do some exercise. After then we start a new topic 2.2, that is your indefinite pronouns. First we revise a topic pronoun review, and then we do some exercise related to that topic, so that you can able to do, or you can able to understand the chapter more clearly. So let's start. Open page number 25, chapter 2, pronouns, टॉपिक 2.1 प्रोनाउन रिव्यू. सो एक बार हम प्रोनाउन का रिव्यू या रिवीजन दोबारा कर लेते हैं, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर क्लियरली. First definition of pronoun is a pronoun is a word that can be used to take the place of noun. Means प्रोनाउंस आपके वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं. नाउन क्या होता है? नेम्स होते हैं. नेम्स ऑफ any animal, person, place or thing, that is your noun. And pronoun is that word that you have to change or replace in the name of noun. अब वो कौन से वर्ड्स होते हैं या वो कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो हम किसी के नाम की जगह एक्सचेंज करते हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट. सेकंड डेफिनेशन होती है आपकी personal, reflexive, demonstrative, interrogative and possessive. These are the 5 different types of pronoun that you are going to study again, or you are going to revise that again. First is about personal pronoun. First we do revise a pronoun, personal pronoun definition. What is personal pronoun? Personal pronoun is a word that can be used to take the place of noun. मीन्स पर्सनल प्रोनाउन आपके वो वर्ड्स होते हैं जो आप नाउन की जगह प्लेस करते हो. द नाउन टू बी रिप्लेस्ड कैन बी द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. और वो जो नेम है वो आपका किसी का भी हो सकता है, चाहे इंसान का हो, जानवर का हो, वस्तु का हो या आपका किसी चीज़ का हो. वो आपके क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं. नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज द प्रोनाउन मस्ट एग्री इन अ नंबर विद द नाउन दैट इट इज रिप्लेस. अगर आपका प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में है, अगर आपका नाउन सिंगुलर फॉर्म में है, तो जो प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन में जो वर्ड्स यूज होते हैं वो भी आपके सिंगुलर होंगे. एंड इफ योर नाउन इज प्लूरल देन योर प्रोनाउन इज ऑल्सो भी प्लूरल. नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी ऑफकोर्स सिंगुलर ही होगा. अगर आपका नाउन प्लूरल है देन ऑफकोर्स आपका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा. एग्जाम्पल में आपको मैं कल समझा चुकी हूँ. टुडे वी आर जस्ट डूइंग रिवीजन, सो वी डोंट हैव इनफ टाइम. सो लेट्स मूव फर्दर अबाउट द पर्सन्स. पर्सनल प्रोनाउन की 3 फॉर्म्स होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? यानी कि मैं. हु इज स्पीकिंग टू यू, या हु इज स्पीकिंग इज योर फर्स्ट पर्सन. और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन में? वो होते हैं आई, माई, मी, वी, आर एंड अस. दीज आर सम प्रोनाउंस दैट वी यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन or the person who is speaking. Okay, next is what about second person? The pronoun that we used for second person is you,
your, yours. These are some pronouns that we used for second person or the person or one who is spoken, यानी कि आप लोग, right? थर्ड पर्सन यानी कि दिस बुक, he, she, it, they, their, them. These are some pronouns that we use for third person or the person who is spoken about is your third person. And अगर आपका नाउन मस्कुलाइन है तो जो आपका प्रोनाउन होगा वो भी मस्कुलाइन होगा. अगर आपका नाउन फेमिनाइन जेंडर है, फीमेल है, अबाउट गर्ल है, whether it is your animal or a person, so your pronoun is also be feminine. Okay, page turn, page number 26. What are reflexive pronouns? Reflexive pronouns कौन से होते हैं? Reflexive pronouns आपके होते हैं self वाले, means myself, yourself. इन सिंगुलर फॉर्म अगर एक इंसान है, एक इंसान की बात करो, अपने बारे में आप ऐसे लिखते हो, माई सेल्फ कैसे आपने लिखा होगा, आप माई सेल्फ कैसे किसके बारे में होता है? अपने बारे में होता है. तो ये आपके होते हैं जिनके पीछे सेल्फ लगता है, वो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. अब चूँकि बात सिंगुलर एंड प्लूरल की है, जब सिंगुलर होता है तो आपके कौन से वर्ड लगते हैं? सेल्फ, SELF वाले. एंड अगर प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल है, तो आपके कौन से वर्ड्स यूज होंगे? सेल्फ्स वाले, यानी कि SELVES. प्लूरल है तो मैंने बताया था वो चेंज हो जाते हैं. सेल्फ किस में जाते हैं? सेल्फ्स में जाते हैं. F किस में चेंज हो जाता है? VES में आपका F चेंज हो जाता है. नेक्स्ट आपका आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. अब बात आती है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके कौन कौन से होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज. दीज आर योर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. एंड अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं. दिस आपका तब होता है जब कोई सिंगुलर चीज़, कोई एक चीज़ आपके पास हो, तब आप दिस यूज़ करते हो. कोई सिंगुलर चीज़, एक चीज़ आपसे दूर हो, तो आप क्या यूज़ करोगे? दैट. एंड दीज मीन्स जब प्लूरल फॉर्म यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें आपके पास हो तो आप दीज यूज़ करते हो, और एक से ज़्यादा चीज़ें यानी कि प्लूरल फॉर्म में एक से ज़्यादा चीज़ें आपसे दूर हो तो आप क्या यूज़ करते हो? दोज यूज़ करते हो. तो ये आपके क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं. अब बात आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन हु एंड व्हाट, यानी जिस भी सेंटेंस में आपका हु और व्हाट से स्टार्ट हो, जो क्वेश्चन की तरह आपसे पुट किया जाए, प्रश्न की तरह पूछा जाए, वो आपके क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं. अब पोजेसिव प्रोनाउंस. पोजेसिव प्रोनाउंस हमने जैसे नाउन में पढ़ा था पोजेसिवनेस. पोजेसिव क्या होता है? टू शो बिलोंगिंगनेस, किसी का किसी पे हक होना, ओनरशिप होना, वो आपके क्या होते हैं? पोजेसिव होते हैं. अब पोजेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? माइन, मेरा, योर्स, तुम्हारा, हिज, इसका, हर्ज, उसका, और यानी हम सबका. So these are the words that are possessive pronouns. And yesterday I gave this chart to you to learn this chart, and I hope you already did. And today our topic is complete about the revision of pronoun, and now we are going to do some exercise. So come to exercise number A. Exercise number A is write a suitable pronoun in each blank space. Means जितने भी आपके blank space हैं आपको यहाँ पे pronouns भरना है. The first one is done for you. They told dash to tell dash the truth or they put me in the jail. उन्होंने कहा बोलो सच वरना जेल में डाल देंगे. Now you have to put the pronouns here as they already did. तो सेंटेंस आपका क्या बना? They told me, उन्होंने मुझे कहा, to tell them, कि बोलो उनसे सच, और they will put you in the jail, अदरवाइज वो आपको जेल में डाल देंगे. सो ऐसे जितने भी ब्लैंक्स हैं आपको क्या करना है? प्रोनाउंस भरनी है. यू हैव टू फिल दैट प्रोनाउंस. फर्स्ट वन इज दे आर गोइंग टू इंडिया. वो इंडिया जा रहे हैं. डैश इज़ अ लॉन्ग जर्नी, बहुत लॉन्ग जर्नी है. एंड डैश विल मेक डैश टायर्ड.
अब आपको ये क्या करना है, यहाँ पे प्रोनाउन भरनी है. टू फिल द सेंटेंस और टू कंप्लीट द सेंटेंस यू हैव टू फिल द प्रोनाउंस हेयर. दे आर गोइंग टू इंडिया. इंडिया जा रहे हैं. इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. ये बहुत लॉन्ग जर्नी है. एंड इट विल मेक देम टायर्ड. और ये उन्हें थका देगी. तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज ए पूरी भरनी है. इसमें आपको सिर्फ प्रोनाउंस भरने हैं विथ सूटेबल प्रोनाउंस भरने हैं जो यहाँ पे भरे जाएंगे. सो हेयर द टॉपिक इज कंप्लीट. पार्ट 1 वीडियो इज योर कंप्लीट.